Second chapter, guys. Quadratic equations. Okay, so guys, before starting with the chapter, what do you mean by quadratic equation? हम लोग किस कौन से equation को quadratic equation बोलेंगे? Yes, guys. Can anyone please tell me what do you mean by a quadratic equation? Yes, guys. Come on, be quick. In the first chapter, we have seen the linear equation. Then second one, we have seen quadratic equation. In the first chapter, I'm talking. Okay, and third was cubic equation. Okay, guys. Linear equation is means what the highest power, or we can say highest degree is what? Two. Sorry, one. Right? In linear equation, your highest degree, or we can say power, or we can say index. All these things are same. If in an equation, if the in the equation, if the highest degree is 2, then that equation is called quadratic equation, and in cubic equation is what highest degree is what 3. But in this chapter, we will see the quadratic equation in only one वेरिएबल. मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा गाइस, वो किसमें रहेगा? सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहेगा, दो वेरिएबल नहीं आएंगे आपके. समझ में आ रहा है गाइस? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट? हाईएस्ट डिग्री और पावर ऑफ इंडेक्स इज व्हाट 2 and one variable. Then that equation is called as quadratic equation. Yes guys, are you getting my point? Yes or no? All of you clear with the quadratic equation? Come on guys, be quick. Okay, okay, very good. So now suppose I am writing the equations. X square plus 2x plus 6 equal to 0. Then x raised to 4, x square plus 2x plus 9 equal to 0. Then x raised to 4, x raised to 5, x square plus 10 equal to 0. So guys, I have written here three equations. You have to identify which one is the quadratic equation. Come on guys, first one, second one or third one. It is very simple. सब लोग आंसर कर सकते हैं इसका. ओके ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ओके, दैट मींस सी हियर वेरिएबल इज ओनली x. in every equation variable is x, but the second condition is what? x वेरिएबल होना चाहिए आपका, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एंड हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए गाइस? यहाँ पे 2. अभी फर्स्ट इक्वेशन में देखो x का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं यस दिस इज एन quadratic equation. But in the second equation, if you see power of first term, that is x raised to 4, this power is what? 4. That means for whole this equation highest power is what? 4. Therefore we say that this is not a quadratic equation. Yes guys, are you getting this? Yes or no? Okay, now next third one. You can see third one again here, highest power is what? 5. Therefore we cannot say this equation is a quadratic equation. So again this is not a quadratic equation. Guys, are you getting my point? Are you getting that how to find or how to identify the quadratic equation? Okay, very good guys, very good. Okay, so guys, now next concept is, now see I'm writing here 3x square plus 2x plus 9 equal to 0. Then second equation I'm writing 3x square minus 6x minus 10 equal to 0. Okay, so guys, before that we will see the standard quadratic equation. So guys, standard quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c equal to 0. So this is called as the standard equation, or sorry, standard quadratic equation. So guys, here a is what? Your coefficient of
x square. B is what? Your coefficient of x, and c is what? Your constant. Okay, so guys, now compare these two equations, guys. Compare these two equations. For the first equation, what is the value of a? Yes, guys, come on, be quick. I want answer from all of you. Yes, guys, what is the value of a if we compare these two equations? Okay, very good, fantastic, guys. Okay, okay. Come on, guys, be quick. फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का. नींद गया ना सब लोग का? आराम ही कर रहे हो वैसे भी. Yes, guys, come on, be quick. Only three students have answer the question. Come on, guys, be quick. Everyone is not answering the. Okay. Atharva. Okay. 1820. Anisa, Ansh, Arya, Atharva, Dhruva, Kajal, Kaustubh, Mayank, Mithil, Mith, Lunal, Nisarga, Paras, Parth, Riya, Sakshi, Sanskar, Siddhi, Sunny, Veer, Vikrant. All of you have to answer the question, guys. Come on, be quick. सब लोग का आंसर नहीं आ रहा है मुझे. Only 4 students have answered the question. Come on, guys, be quick. देखो जिन लोग का आंसर आ रहा है उन लोग के मैं लेक्चर के लिए अलाउ करूंगा, बाकी सबको मैं निकाल दूंगा. आई एम नॉट जोकिंग. ओके, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ यहाँ पे. सब लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे लेक्चर में. ओके, सी गाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c, and this is the equation I have written. So if we compare these two equations, guys, so we have to answer the what is the value of a if we compare these two equations. Come on, guys, be quick. Yes, Smith, are you getting my point? Are you getting the question? Okay, so guys, what is the value of a? साक्षी, 2 कैसे होगा यार? क्या कर रहे हो आप लोग? सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? ओके, नो प्रॉब्लम. सो गाइस, देखो यहाँ पे इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, here x square coefficient is a, here x square coefficient is 3, so therefore a value is what? 3. Then guys, what will be the value of b? Come on, guys, be quick. What is the value of b? Come on, be quick, guys. Okay, okay, very good, guys. B value is what? 2. Then c value is what? 9. Yes, Smith, right? Yes, you are right. Okay, so A is 3, B is 2, and C is what? 9. Now, if I compare this second equation with the standard equation, guys, so what will be the value of A? Come on, guys, be quick. What will be the value of A? Okay, very good. Then, what will be the value of B? Come on, guys, be quick. What will be the value of B? Okay, very good, guys, very good. So B value is what? -6, guys. ये आपको ध्यान में रखना है. पार्थ 6 नहीं आएगा, काजल 6 नहीं आएगा. देखो यहाँ पे bx जो है, यहाँ पे साइन है आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका साइन है नेगेटिव, मतलब आपको b जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -6. ओके, एंड गाइस लास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ओके, वैल्यू ऑफ c इज व्हाट? -10. यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है अभी इसमें? हाउ टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट. एक इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज a, x कोएफिशिएंट इज b, एंड कांस्टेंट इज व्हाट? c. ओके गाइस, क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है? देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसको हम लोग जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं गाइस, ध्यान में रखो. ओके, ठीक है. सो गाइस, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गाइस, प्लीज पे अटेंशन. सो रूट्स of the equation, or we can say solution of, actually यहाँ पे quadratic equation है, solution है, और solution of
quadratic equation. Okay guys, so guys, रूट्स ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? अगेन हम लोग पीछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। देखो गाइस, लीनियर इक्वेशन में आपका जनरल इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अभी ये इक्वेशन में गाइस आपको x का एक ही वैल्यू मिल रहा था एंड y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा था, बराबर, राइट गाइस। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो गाइस आपको x का वैल्यू जो मिलता है वो दो वैल्यूज मिल जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड सपोज आपका इक्वेशन क्यूबिक है, देन आपका जो x का वैल्यूज गाइस होता है वो क्या होता है गाइस? 3 वैल्यूज होता है। यस गाइस, ये जो मैंने लिखा है क्या आपको याद है? आपको पता है लीनियर इक्वेशन में आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x का दो ही वैल्यू मिलेगा एंड क्यूबिक इक्वेशन में आपको x का 3 वैल्यूज मिल जाएगा। यस गाइस, क्लियर है? ये क्लियर है आप लोगों को? गाइस मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। Okay. So now guys, see, please pay attention now. See, this is the values of x and y. Again, here we are getting two values of x. Here we are getting three values of x. So all these values of x and y, or say x, these values are nothing but the solutions of the given equation. Here x and y are the solutions of these equations. X का जो दो values आ रहा है, these are the solutions of this equation. X का जो तीन values आ रहा है, these are nothing but the solutions of the given equation. Okay. Now, while talking in terms of the quadratic equation, the solution is nothing but what? The roots of the equation. That means रूट्स मतलब क्या होता है गाइस? अगर मेरे पास सपोज कोई तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड सपोज मुझे x का वैल्यूज मिल गया m एंड n। अभी ये सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है गाइस? सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? अगर सॉल्यूशन और रूट्स ये क्या होते हैं आपके गाइस? रूट्स, or we can say solution. Okay, so if I'm saying m and n are the roots of this equation, that means what? If I put value of m in x, if I put value of m in place of x, we will get equal to 0. Guys, I am again repeating, अगर मैंने x का वैल्यू जो m है वो अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। मतलब क्या है? जो रूट्स मतलब क्या है? जो रूट्स है वो इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। इसमें क्या बोल रहा हूँ? सेटिस्फाई करते हैं। Yes guys, are you getting my point? What do you mean by roots of the equation or the solution of the equation? Yes guys, come on guys, reply कर दो, be quick. ओके, ओके, वेरी गुड गाइस। रूट्स मतलब क्या? अगर वो वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? बाकी का हम लोग फैक्टर्स क्या होता है बाद में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? रूट्स मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब क्या, हो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या होता है? वो वैल्यू पुट करने के बाद मुझे राइट हैंड साइड में जो 0 होता है वो वैल्यू मुझे मिल जाता है। ओके, सो गाइस हम लोग क्या करते हैं अभी? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दो यहाँ पे। जस्ट अ मिनट है गाइस। Yes, give me 5 minutes. I'm sharing the.
ओके सो गाइस, क्या आप लोग को एक क्वेश्चंस दिख रहा है? यस गाइस, क्या आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस लिखा है वो सब लोग को दिख रहा है? यस और नो? ओके सो गाइस प्लीज पे अटेंशन नाउ. Okay. So guys, see this first question. First question is, which of the following is not a quadratic equation? So guys, come on, answer कर दो. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इसमें से कौन सा इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? कम ऑन गाइस. ओके ओके, वेरी गुड गाइस, सब लोग का ध्यान है मतलब बराबर. मतलब गाइस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी. ओके गाइस, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें. ओके नाउ नेक्स्ट गाइस, सेकंड क्वेश्चन बताओ. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री. क्या आ जाएगा इसका डिग्री गाइस? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड गाइस, इसका डिग्री क्या होता है? 2 हो जाता है. मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी. गाइस समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके ठीक है. तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 आर. अभी देखो, ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करते बिल्कुल भी नहीं बैठना है. इसका फैक्टर्स निकालने जाओगे, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फैक्टर्स निकालने के लिए नहीं आता है. ठीक से. ओके तो आपको क्या करना है? सिंपली रूट से मतलब क्या? सॉल्यूशन है. मतलब क्या? ये वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू 0 मिलना चाहिए बराबर. तो चलो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूं. फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? x इज इक्वल टू 2/3. तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या है गाइस? ओके, आपके पास इक्वेशन है क्या है गाइस? 6x स्क्वायर ओके, आपके पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0. ओके, अभी आपको ऑप्शन कौन सा है फाइंड आउट करना है बराबर. तो आपको क्या, आप लोग क्या करोगे? पहले 2/3 पुट करके देखो क्या आ रहा है. तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू सपोज मैंने 2/3 पुट कर दिया माइनस 2/3 माइनस इक्वल टू, अभी वैल्यू क्या आएगा? 0 नहीं आएगा. आपको फाइंड आउट करना है 0 आएगा कि नहीं. तो सॉल्व करो इसको, तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 माइनस 2/3 minus 2. Now here you can write 3 to the 6, 3 3s are 9. That means आपको मिल जाएगा 2 4s are 8/3 minus 2/3 minus 2. So now you can see 8/3 minus 2/3 मतलब सिंपल है. डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो आपको मिल जाएगा 8 माइनस 2, आपको मिल जाएगा 6 अपॉन 3 माइनस 2. सो 6/3 क्या होता है गाइस? 2. सो 2 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 0. मतलब 2/3 के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है. मतलब सिंपल है. देखो ये ऑप्शन बी तो आपका चला जाएगा एंड ऑप्शन डी भी चला जाएगा. अभी आपको देखना है 1/2 आएगा या -1/2 आएगा. ठीक है, तो अभी 1/2 पुट करके देखो. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 1/2 माइनस 2. दैट मीन्स 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट? 1/4 minus 1/2 minus 2. That means 2 3s are 6, 2 2s are 4. That means आपको मिल जाएगा guys 3/2 minus 1/2 minus 2. Now 3/2 minus 1/2. Again, denominator is same. You can subtract numerator. That means 3 minus 1 is 2/2 minus 2. बराबर guys. तो देखो आप लोग को क्या मिला? 2/2 1 आ जाएगा. So 1 minus 2 आंसर मिल रहा है -1. Yes guys. मतलब आपको आंसर 0 मिल रहा है क्या? यस गाइस, आप लोग को मिल रहा है. अरे यहाँ पे बराबर किया हम लोग ने 1/2 का स्क्वायर. ओके
यस, मतलब देखो गाइस 1/2 तो ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग -1/2 करके बैठेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग को पता है 2/3 तो आने वाला है, फिक्स है। 1/2 नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा? -1/2। सो गाइस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ये क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी गाइस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? संस्कार समझ में आ गया? डायरेक्टली एक वैल्यू आ रहा है तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपको चेक करना है। ओके, तो गाइस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। अभी 2/3 पे लिए 3 के लिए 0 आ रहा है, मतलब क्या? देखो बी एंड सी, तो बी एंड डी तो चला गया ऑप्शन। अभी आपको ए एंड सी में ही चेक करना है। 1/2 पुट कर दिया, मुझे 0 नहीं मिल रहा है। 1/2 नहीं आ रहा है, मतलब -1/2 आने ही वाला है, फिक्स है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन सी हो जाएगा। यस और नो गाइज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइज मैं बाकी लोग को भी पूछ रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस और नो? क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया? इसका फैक्टर्स निकालते मत बैठो, बिकॉज आप लोग फैक्टर्स में गलती करते हो, मुझे पता है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? देखो ये गाइस आपको क्वेश्चंस बाद में फिर से सॉल्व करने में ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पे अटेंशन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइस। क्या है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नॉट 2, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द quadratic इक्वेशन whose roots are 1 and -1/2 each। देखो अभी रूट्स आपको दे दिया 1 and -2, इसमें से कौन से इक्वेशन का ये रूट से आपको फाइंड करना है। मतलब क्या? x का वैल्यू 1 पुट करो, -1/2 पुट करो, कौन से इक्वेशन के लिए दोनों वैल्यूज के लिए 0 आ रहा है आपको चेक करना है। सो गाइस कम ऑन, बी क्विक, आप लोग को सॉल्व करना है। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कम ऑन बी क्विक गाइस, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम ऑन गाइस, बी क्विक। सॉल्व कर सकते हो आप लोग? चलो सॉल्व करो तो फिर। ओके, आर्या का आंसर आ गया, बाकी लोग? Come on guys, please let me know the answer. Be quick. Okay, Munal, very good. बाकी लोग? बाकी लोग आंसर करो। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया है मुझे। ओके वेट, वीर, वीर का आंसर आ गया है। अभी मुझे पता नहीं किसका करेक्ट है, देखेंगे हम लोग। ओके, काजल का पे आ गया, अनिशा का पे आ गया। कम ऑन गाइस, बी क्विक।
ओके, अभिषेक का आ गया, पार्थ का आ गया। ओके, सो गाइस आई थिंक इसका ऑप्शन बी आना चाहिए। लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। फर्स्ट हम लोग इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, 2 इंटू वन टू प्लस वन माइनस वन, मतलब यहाँ पे ये जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो गया। अभी ऑप्शन बी देखो, वन पुट कर दो, 2 इंटू वन माइनस वन, सो 2 इंटू वन टू माइनस वन माइनस टू, आंसर आ रहा है जीरो, मतलब वन के लिए तो जीरो आ रहा है। अभी माइनस वन बाई टू के लिए देखना है, सो 2 इंटू माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस, अभी देखो x का वैल्यू माइनस वन बाई टू, मतलब माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू माइनस, तो देखो यहाँ पे टू इंटू आ रहा है, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर आ जाएगा गाइस वन बाई फोर, ये हो जाएगा प्लस वन बाई टू, बिकॉज माइनस माइनस प्लस ये माइनस वन, दैट मीन्स ये टू वन जा टू, टू जा फोर, मतलब आपको मिल जाएगा गाइस वन बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस वन, सो वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन, वन माइनस वन, गाइस आंसर आ रहा है जीरो, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आ गया? क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? यस और नो? ओके, सो गाइस नाउ गाइस ये टाइप का क्वेश्चन आ गया है क्या, देखना है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री आर। अभी आपको इक्वेशन दिया है गाइस, गाइस क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गाइस सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ये सारे अभी दिख रहा है स्क्रीन? ओके, सो गाइस x प्लस वन अपॉन एक्स से क्या क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस गाइस, x प्लस वन अपॉन एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो गाइस अभी आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका रूट्स। तो गाइस चलो सॉल्व करो, x का वैल्यूज आपको पुट करके देखना है, वैल्यूज क्या आ रहा है, कम ऑन गाइस बी क्विक। वैल्यू थ्री आ रहा है क्या आपको देखना है, x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है। गाइस स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? ओके, वेरी गुड। सो गाइस चलो आंसर बताओ, x का वैल्यू पुट करो, वैल्यू थ्री आ रहा है क्या बताओ मुझे, चलो कम ऑन गाइस बी क्विक।
यस गाइस, आंसर क्या आ रहा है बताओ। ओके, पार्थ का आ गया, बाकी लोग। गाइस, आंसर आना चाहिए आप लोगों का, कम ऑन बी क्विक। ओके, वीर का आंसर आ गया, बाकी लोग। ओके, संस्कार का आ गया, वीर का आ गया, बाकी लोग। ठीक है, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। सही, फर्स्ट हम लोग 3 + √5 पुट करके देखते हैं, देखो। 3 + √5 +1/3 + √5। ओके गाइस, सॉरी 3, या यस गाइस, देखो अभी यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, तो गाइस क्या करोगे आप लोग पहले। यस गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग क्या करोगे। देखो पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 + √5 इंटू 3 + √5 +1/3 + √5। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3 + √5 मतलब 3 + √5 का होल स्क्वायर। अभी a प्लस भी होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a स्क्वायर, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 9 प्लस 2ab मतलब आपको मिलेगा 2 3 = 6 √5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी, देन √5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा गाइस 5 एंड a +1/3 + √5। अभी देखो गाइस यहाँ पे 9 + 1 10 +5 आपको मिल जाएगा 15। ओके, तो आपको मिल जाएगा 15 + 6 √5/3 + √5। In the numerator, if I take, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 लिया तो आपको मिल जाएगा 5 + 2 √5/3 + √5। देखो मतलब इसको आगे कुछ भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये टर्म आपका कैंसिल नहीं हो रहा है बराबर। इसका मतलब गाइस यहाँ तो क्लियर हो गया कि आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं गाइस, प्लीज पे अटेंशन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए तो गया, अभी ऑप्शन बी देखते हैं। 2 + √5 +1/2 + √5। अगेन एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो गाइस आपको मिल जाएगा 2 + √5 होल स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5. सो 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर, मतलब गाइस आपको मिल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 टू इज 4 रूट 5 प्लस रूट 5 स्क्वायर इज 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5. अगेन 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो आपको मिल जाएगा गाइस 10 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5. अगेन देखो इसमें से कुछ भी कॉमन निकाला तो भी ये सॉल्व होने वाला नहीं, मतलब गाइस ऑप्शन बी भी गया, मतलब ऑप्शन बी से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट. अभी हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं. देखो ऑप्शन सी क्या है, 3 प्लस रूट 5, सो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा गाइस तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. अभी देखो यहाँ पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो 3 स्क्वायर आ जाएगा गाइस 9 प्लस 2 3 6 रूट 5 प्लस रूट 5 स्क्वायर इज 5 अपॉन ए 2 का स्क्वायर गाइस आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. ओके, एक्चुअली गाइस एक थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक से राइटिंग ठीक से नहीं आ रहा है. ठीक है, अभी 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा गाइस तो आपको मिल जाएगा 9 इस 2 मिनट कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट है गाइस. ओके, तो 3 प्लस रूट 5 पुट करने के बाद आपको मिला था 9 प्लस 6 रूट 5 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. अब एक 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा गाइस तो आपको मिल जाएगा 9 प्लस और 9 प्लस 5 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 14 लिख रहा हूँ गाइस यहाँ पे. गाइस सॉरी आज थोड़ा ये ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप का. सो 9 प्लस 5 14 प्लस 6 रूट 5 प्लस 4 बिकॉज ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. ओके, अभी देखो यहाँ पे 14 प्लस 4 गाइस आपको मिल जाएगा 18 प्लस 6 रूट 5 अपॉन ए 2 1 जा 2 ए 2 2 जा 4, मतलब आपको मिल जाएगा और ए 2 नीचे आ जाएगा तो आपको मिलेगा 2 3 जा 6 प्लस 2 रूट 5. ओके, अभी देखो गाइस सपोज मैंने न्यूमरेटर में 3 कॉमन निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा 3 6 जा 18 3 2 जा 6 अपॉन 6 प्लस 2 रूट 5. देखो यहाँ पे 6 प्लस 2 रूट 5 कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल रहा है 3. इसका मतलब है इतना तो फिक्स हो गया कि 3 प्लस रूट 5 बाई 2 होगा तो ही आपको आंसर 3 मिलेगा. क्या ये ऑप्शन किधर दिख रहा है, मतलब आपको आगे इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी 3 आने वाला है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यस गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके ओके, वेरी गुड गाइस. So now what we'll do, we will see now next concept. Okay, so guys एक question clear है सब लोग को? Okay, now guys please pay attention. Yes guys, सब लोग को ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है? Okay, so guys now next concept, please pay attention. Now suppose ax square
यस प्लीज वेट, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है यार. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट मित, जस्ट अ मिनट. यस गाइस, अभी स्क्रीन पे जो लिख रहा है दिख रहा है सब लोग को? यस. Yes guys, okay. So now please pay attention. Suppose I have equation ax square plus bx plus c equal to 0. Okay guys, please pay attention. And suppose I am saying x is equal to m and x is equal to n are roots of the equation. Then guys, x minus m and x minus n are called are factors of equation. Yes guys, ये पता है आप लोगों को? अगर x is equal to m n n रूट्स है आपके, तो x minus m and x minus n ये क्या हो जाएंगे guys? आपके factors of the equation जाएंगे. Okay guys? Yes guys, ये clear है सब? Yes guys, ये समझ में आ गया? m n n अगर रूट्स है तो x minus m and x minus n are called as the factors of the equation. Yes guys, ये clear है सब लोग को? Yes or no? Okay. So now guys, next concept is discriminant, or directly we will see factor method or formula method guys. Sorry, all of you know how to find the roots of the equation by factor method. That formula is what? X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Yes guys, all of you know this formula. This roots, that is nothing but the x is equal to what? Minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Yes guys, all of you know this formula? Yes or no? Okay, okay, very good. So guys, can anyone please tell me what this b square minus 4ac is called as? Yes guys, b square minus 4ac जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? ओके अनिशा, वेरी गुड. यस गाइस, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, किसी को याद है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, डेल्टा. ठीक है गाइस, इसको ही दूसरा नाम है गाइस डिस्क्रिमिनेंट. यस गाइस, ये आप लोग को पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब होता है डेल्टा, इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. यस और नो गाइस? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताओ, पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मतलब एक्सप्लेन कर जैसा कुछ नहीं, आपको ध्यान में रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट योर डिस्क्रिमिनेंट. यस गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट कभी पढ़ा है? ओके, ठीक है. ऐसा अभी ध्यान दो यार. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज discriminant. Okay, it's not always greater than 0. I am coming to that point only. So guys, b square minus 4ac delta is equal to आ गया discriminant, बराबर. So guys, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे. अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जो है गाइस, ओके, इक्वल टू 0 हो गया गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? ध्यान दो यहाँ पे. ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. व्हाट?
अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये आपका 0 हो गया, मतलब देखो ये 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, गाइस ये दिख रहा है सब लोग को, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे जो लिखा है मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब लोग को दिख रहा है? यस और नो गाइस? ओके, तो गाइस अगर ये 0 हो गया, 0 होगा तो क्या होगा देखो, माइनस बी प्लस माइनस हो जाएगा रूट 0 अपॉन 2a। अभी रूट 0 मतलब 0 ही होगा, मतलब आपको गाइस वैल्यू मिल जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। मतलब गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x का एक ही वैल्यू मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, देखो यहाँ पे x का क्या वैल्यू मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर x का तो 2 वैल्यूज होता है, यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रहा है। ये से करेक्ट है, एक ही वैल्यू मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, आप लोग को क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब x का वैल्यूज आपको 2 वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन एक इसमें क्या हो गया गाइस, m का एंड n का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो गया गाइस, सेम हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को, m का एंड n का वैल्यू क्या हो गया गाइस, सेम हो गया। यस गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस और नो? दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ गाइस, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो मैं लिख सकता हूँ गाइस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यस गाइस, क्या आपको समझ में आ गया है ये जो मैंने लिखा है, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, क्यों आ गया, समझ में आ गया सब लोग को? यस और नो? इसे ध्यान में रखना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स आपका रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, राइट ना। अगर आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया गाइस, ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, अभी ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आने वाला है आप लोग का, बराबर। सपोज यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका से टी, मतलब इस टी का वैल्यू हम लोग कुछ तो आने वाला है रूट टी, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस रूट टी आने वाला है। मतलब प्लस माइनस आ रहा है मतलब क्या गाइस, आपका x का वैल्यूज एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो आपको दो वैल्यूज मिलने वाला है, बराबर। मतलब क्या है, दो वैल्यूज आपका इक्वल है नहीं है, मतलब आपका m का वैल्यू अलग रहेगा, n का वैल्यू अलग रहेगा। दैट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac और वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन आपका रूट्स तो रियल रहेगा बट क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। यस गाइस, क्या आपको ये समझ में आ गया, रूट्स रियल और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट क्यों आ रहा है? यस और नो? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट गाइस, सपोज दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया गाइस, अभी ध्यान दो यहाँ पे, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो आपका रूट्स क्या हो रहा है गाइस, लेस देन 0 आ रहा है। अभी लेस देन 0 मतलब आपको पता है ये जो वैल्यू रहेगा, ये क्या वैल्यू आने वाला है गाइस, माइनस, मतलब निगेटिव में वैल्यू आएगा। तो गाइस क्या हम लोग निगेटिव वैल्यू का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी देखा था, राइट। हम लोग नेगेटिव नंबर का कभी भी रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आपका रूट जो रहेगा आर नॉट रियल। वो इक्वल होगा अनइक्वल होगा उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या होगा, रियल नहीं होगा, ये आपको सिलेबस में आपको इतना ही है। अभी वो इक्वल होगा नॉट इक्वल होगा वो आपको अभी नहीं है। रियल नहीं है मतलब गाइस इसको दूसरा वर्ड होता है गाइस, इमेजिनरी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये ध्यान में रखो। और हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस ध्यान में रखो नॉट रियल। ओके गाइस, एक कंडीशन समझ में आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आपका रियल होगा इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और वी कैन से डिस्टिंक्ट, and if the b square minus 4ac is less than 0 then we can say roots are what, not real। yes guys, क्या आपको एक कंडीशन समझ में आ गया है? yes और no? आ गया है तो बताओ आ गया है, नहीं आ गया समझ में तो मुझे बताओ नहीं समझ में आ गया। क्लियर है सब लोग को?
ओके ओके वेरी गुड. सो गाइस नाउ आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप पे. स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये चीज का ये पेज का चाहिए तो गाइस स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो ले लो, चलो जल्दी. डन. ओके. सो गाइस अभी हम लोग स्टॉप करते हैं लेक्चर. ये जो आपको जो आज सिखाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये आपको फिर से रिवाइज करना है. इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग कल सॉल्व कर देंगे. ओके क्लियर है सब लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो गाइस? गाइस क्लियर है सब लोग को? अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते. ओके ओके. सो गाइस नाउ विल स्टॉप द लेक्चर. ओके अभी आपका वाई का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. ओके चलो बाय बाय गाइस.